The good thing about the data fields is that तुम्हें ज़रूरी नहीं कि सारी coding आनी चाहिए. You can expect to get somewhere around $75,000 to $90,000 a year. Someone who has minimal experience or no experience at all but has interest in the field and he wants to do a self-study. So what roadmap should that person follow to get a good job? कुछ output you are expecting in business perspective या business revenue growth, कुछ भी data set हो सकता है. So you do that. That will be called as a project. It's more like you are seeing the data and उससे you are driving insights कि हमें business में कैसा use होगा. And that person wants to make a good project for his resume. So क्या-क्या projects बनाने चाहिए? To make some ETL pipeline projects. If you're seriously preparing, तो एक list बनाओ for the companies जिसमें तुम target कर रहे हो. But why data engineering only? Why not any other field? I have been into different fields. I have worked as a data analyst, a data scientist, a technical consultant. Analysis क्या करेंगे अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे पास डेटा कैसा है, क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे efficiently लेके आएंगे. Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and I hope you all are doing well. मेरे कुछ पिछले पॉडकास्ट में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं which means that you guys are enjoying the videos and the podcast and I'm so happy to see that. और यही देख के मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए. So आज की पॉडकास्ट डेटा के अराउंड होने वाली है एंड आवर गेस्ट इज अ डेटा इंजीनियर इन टोयोटा इन द यूएस एंड इनको 6+ years का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड. पॉडकास्ट थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है बिकॉज इनका टेक्निकल कोई बैकग्राउंड नहीं है एंड ही हैज़ डन हिज इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग. So people who are looking forward to transition their career from non-tech to coming into the data engineering field, this is going to be a really interesting podcast for you guys. So from his experience, we are going to know कि अगर आपको non-tech से tech में transition करना है, then what are the steps that you should follow? And because he is working in the US, तो we'll also understand कि salary और packages में कितना difference होता है in India and outside. And how much time did he take to do his preparations? What resources did he follow? What was his strategy? All of it we are going to understand in the podcast very clearly. So stay with me till the end of the podcast and I'm sure this is going to be really helpful for you. मैं कोशिश करूंगी कि पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव हो ताकि आप लास्ट तक स्टिक करो एंड एक एक क्वेश्चन ऐसा हो कि उससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपना करियर डेटा साइंस से बनाना चाहते हैं तो ओडेन स्कूल इज हियर विद इट्स 6 months डेटा साइंस बूट कैम्प that will not only help you gain the skills required to be a data science engineer, instead it will also give you a high paying job. अब कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स होगा एंड डेटा साइंस इंजीनियर बनने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको जैसे SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, जेन AI एटसेट्रा, इन सबको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा बाय द मेंटोर्स हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कंपनीज लाइक गूगल एंड Amazon. साथ के साथ आपको 10 से ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाएगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन एटसेट्रा, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके. अब एक बार आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा विद देयर 500+ हायरिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक गूगल, डेलॉयट एटसेट्रा एंड दिस जॉब असिस्टेंस विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर 2 years. So you don't have to worry at all. And उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए they are also conducting sessions for resume building, mock interviews and also for your soft skill development. चलो कोर्स के प्राइस की बात करें तो ये 75,000 रुपीज, बट क्योंकि EMI ऑप्शन भी है, स्कॉलरशिप ऑप्शन भी है, तो करंटली आपके पॉकेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी. रजिस्टर राइट नाउ एंड ऑल्सो देयर बी अ फॉर्म. तो उस फॉर्म में अगर आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर दोगे जैसे कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस एंड ऑल ऑफ इट एंड आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो भी भर देना एंड यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट अ कॉल बैक. तो वंस यू गेट द कॉल बैक आपको जो भी क्वेरीज हैं आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. So on that note, let's welcome Ayan on my channel. Hi Ayan, how are you doing? I'm good, Shivangi. How are you? Thank you for inviting me to have a chat with you. Thank you so much Ayan. Thank you for coming. Ayan, वैसे तो मैंने आपका काफी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, but still I would request you to introduce yourself to my audience so that they understand you better. Okay. Hey guys, I'm Ayan Tiwari. I am currently a data engineer with Toyota Motors in North America. मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2014 में when I started my undergrad in civil engineering. Throughout my undergrad मेरे को realize हुआ कि I am not clear cut for a government or a very core role. So I started learning coding, and by the end of my undergrad I was an intermediate in coding. And then I joined Ernst & Young as a consultant, and I realized presentations and that are again not my thing, but I want to pursue something which is more technical and more related, more into coding, more into data science. And so I came to the US for my master's, and I did take my courses, went along with it,
and उसके बाद when I graduated from masters, now I am finally working as a data engineer. Amazing. So I thought कि civil engineering में people who develop interest in coding, it's very rare, but somehow you did that. We'll understand all of it कि कैसे आपने वो interest develop किया, then how did you work towards it to getting a job, a good job, and then pursuing masters and all of it. But why data engineering only? Why not any other field? Okay, so मैं ये बता पाऊँगा because I have been into different fields. I have worked as a data analyst, a data scientist, a technical consultant, and I have also more information about like a business intelligence analyst. And मेरे को realize हुआ by like going through the hard way कि if we don't have clear cut data, if we don't know कि यार data कहाँ से आ रहा है, systems क्या हैं, हमें पास data कैसा है. So we can never do any predictions. We can never make any dashboards. Analysis क्या करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास डेटा कैसा है, क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे efficiently लेके आएंगे. And hence I chose data engineering. कि अगर मैं बिल्कुल root cause पे जाऊँगा problem के, तो solution निकलेगा. Okay, interesting. So you took a lot of names of the profiles. Yes. And I'm interested to know what all profiles are there inside the data domain. Yep. So I will start from the basic profiles like data analyst, people who are very good to like point out things from data, who can actually see the things in data. जो लोग वो चीज़ें देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता डेटा में से, they should pursue data analysis. Data engineering जैसे मैंने बताया is someone who wants to work from where the data is coming, who wants to get his hands dirty in the field, like जहाँ पे to understand the systems, to understand the data and the source of data. वो data scientist इसके बाद आता है to using his mathematics, statistics knowledge to basically create some models, get some more insights out of the data and थोड़ी predictions वगैरह करते हैं. Similarly, like machine learning engineer goes as with data scientist. ठीक है. So इनमें से कौन से roles ऐसे हैं जिसमें जो freshers के लिए सबसे ज़्यादा easy होते हैं, especially at the entry level? Yep. So I guess आजकल के जॉब मार्केट के हिसाब से तो nothing will be easy, but थोड़ा सा like I would ask people to like थोड़ा सा explore करो सब जगह. But if you want to be like if you want to be in a role जहाँ पे ज़्यादा coding है, जहाँ पे ज़्यादा technical know-how है, cloud technologies हैं, तो you should choose data engineering. If you want to be like हमें dashboards बनाने हैं, we have to be creative with dashboards, हमें insights निकालने की data से क्या है, we have to drive the business decisions. तो data analysts, business intelligence engineers, you can be that. And अगर तुम्हें if you want to like predict the future, यार data है हमारे पास, we have to predict यार कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है कंपनी को फॉर द फ्यूचर. द डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर इज अ वेरी गुड रोल. ठीक है, बट आई एम सीइंग दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन कोडिंग, बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट नॉट एवरी डेटा रोल नीड्स एज मच कोडिंग. सो समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग and not coming from a coding or technical background, how difficult or easy it's going to be for them to enter into the field, and what roles can they pursue for? Okay, so the good thing about the data fields is that तुम्हें ज़रूरी नहीं कि सारी कोडिंग आनी चाहिए, तुम्हें ज़रूरी भी नहीं कि यार you should be like तुम्हें डैशबोर्ड्स बनाने आने चाहिए, तुम्हें सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए. All you need is curiosity, थोड़ा सा business acumen to understand like business में problem कैसे लग रही है. And if you pursue roles like say business intelligence engineers, data analysts, you won't be doing a lot of heavy coding. यार Python SQL नहीं करोगे, but some logic you will have to put. तो तुम्हें you're talking about the data analyst role, right? Yeah. So if you be a data analyst, it's more like you are seeing the data and उससे you are driving insights कि हमें business में कैसा use Understood. So even if you don't know coding, थोड़ा सा just learn more about the business. ठीक है. What other roles? Or just the data analyst role? Data analyst is something जहाँ पे I guess the minimal coding will be there. For data engineering, you might have to know Python and SQL. Because if you are moving data then point A to point B, you will have to write some code. कि थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, कॉलम्स लाने हैं नहीं, तो यस. एंड डेटा साइंटिस्ट में से इफ यू वांट टू क्रिएट प्रेडिक्शन मॉडल्स, खुद के पैकेजेस होते हैं पाइथन में, बट अगर तुम्हें से खुद का कुछ बनाना है
तो यू विल हैव हाँ. टू नो वो लाइब्रेरीज कैसे बनी है एंड कैसे यूज है. तो दैट्स लाइक मोर ऑफ द बैक एंड कोडिंग अलॉन्ग विद मैथ्स. ठीक है. सो एज मच एज माई अंडरस्टैंडिंग इज देयर, आई हैव हर्ड कि इनिशियली डेटा एक्सट्रैक्शन इज वन पार्ट विच इज डन थ्रू SQL, right? Yes. So SQL is used. Then comes the second part where you have to do the visualization part. Yes. There comes Tableau or other tools, whatever tools come into picture. How do we utilize Python in it, or can we use any other language? Yes. So I guess ये मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. एंड सो आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अभी यूनिवर्सिटी में, एंड आई वाज ट्राइंग टू यूज ठीक है. SQL टू वर्क अराउंड विद डेटा. And I realized ठीक है. कि SQL bottlenecks over say 1 million rows, because यहाँ पे we are like trying to deal with billions of rows of data. And then PySpark, you have to use PySpark. It's basically a Python library which you leverages the power of Apache Spark to help you efficiently move the data. So it's not about just moving the ठीक है. data A point से B point, but efficiently करना है, जल्दी करना है. And हाँ, right. yeah, for that like SQL you can do, but Python is more suited. प्लस समटाइम्स क्या होता ठीक है, या समटाइम्स क्या होता है कि जो दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. तो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस पे यू हैव टू राइट पाइथन, यू हैव टू राइट JSON, मतलब यू कैन नॉट राइट SQL ऑन दैट. ठीक है. सो वहाँ लिमिट होता है. Makes sense to me, but I think we are jumping too fast into it. What we can do is हम इसे step by step समझ सकते हैं Okay. कि someone who has minimal experience or Gotcha. no Yeah, experience yeah, at all but has interest in the field. Yeah. ठीक है. तो and he wants to do a self study. Okay. So what roadmap should that person follow to get a good job? ओके. तो जो लोग अभी से सेकेंड ईयर में हैं एंड जो अभी लाइक जस्ट दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, तो आई वुड Yeah. सजेस्ट देम टू स्टार्ट विद से पुटिंग डेटा इन एक्सेल, थोड़ा SQL पढ़ें, थोड़ा सा पाइथन पढ़ें, जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ बेसिक्स अबाउट इट. देन Right. parallelly, like when you are like trying to write some codes, write some queries, थोड़ा सा visualization tools like Tableau या Power BI के बारे में थोड़ा सा पढ़ो again. Then create a flow जहाँ पे Excel में फाइल में डेटा डालो, थोड़े से queries लिखी, ट्रांसफॉर्म करा, and then उसको Power BI एंड ये Tableau में डाला, थोड़ा सा विजुअलाइज करो जस्ट टू सी कि लाइक हो क्या रहा है. तो वंस यू सी कि लाइक क्या हो रहा है, तो यू विल हैव अ मोर लाइक बेटर फील अबाउट हाउ आई कैन प्रोसीड एंड मेरे को कहाँ ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. मतलब a lot of skills are there. So मतलब Yeah. talking about each skill and the platforms to practice them. Yep. Can you brief about them? Yes. So for SQL and for Python, I know LeetCode बहुत famous है, but for SQL, I will personally suggest HackerRank because HackerRank के Okay. questions I really liked. मैंने multiple times करे हैं and they are very informative. Beginners to beginner, intermediate, advanced सारे filters होते हैं. तो just start with beginners. Just see like what concepts you are missing and just try to solve it. पहले basically solve करो, then उसको थोड़ा और efficiently solve करो. तो for coding, HackerRank ठीक है. and LeetCode will be the best resources. What about SQL? What about data? Yeah, so for example, say if you want to learn about SQL, I would suggest going through YouTube videos to learn like more about it, to like just get a hold of the language, क्योंकि syntax थोड़ा सा different है हमारी normal coding languages से, but it's like वो काम same ही कर रहा है. I have heard about Kaggle also. Okay. Like what do we do on Kaggle? What sort of Okay. data set or questions are there? So Kaggle is a very informative website. मैं पहले बहुत ज़्यादा use करता था when I wanted to be a data scientist or I wanted to apply Okay. my models. So Kaggle is a very good platform जहाँ पे आप लोग बहुत सारे infinite data sets available हैं, आप उनके साथ play around कर सकते हो, आप अपने machine learning models या predictive models कर सकते हो, उसमें like चला सकते हो. Then what you can do is say just go to Kaggle, don't go through competitions. उसमें beginners to again beginners, intermediate, advanced का level होगा. So try with beginner data sets. Try to again data engineering ज़्यादा वहाँ नहीं कर पाओगे because ज़्यादा multiple systems नहीं है, but वो data scientists and machine learning engineers and even data analysts के लिए बहुत अच्छा website है because बहुत सारे data sets available हैं and आप जाके queries लिखो, code लिखो, data से insights देखो and machine learning models वगैरह चलाओ. प्लस अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कोई मॉडल चलाने हैं जहाँ पे GPU वगैरह की ज़रूरत है, तो गूगल को लैब यूज़ कर सकते हो. ऑल्दो Tableau खुद की अपनी वर्कबुक्स प्रोवाइड करता है, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड असिस्टेंस जो आपके लिए आवे. Nice, nice, nice. ये भी हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे Yeah. that how to utilize it, how to get these resources and how to like practice them. That is
अनदर पार्ट. सो उसके पहले पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द सैलरी. सबसे पहले क्या होता है व्हेन यू डिसाइड अ करियर, ऐसा लगता है कि हाँ ये इस फील्ड में जाना है, सबसे पहली क्यूरियोसिटी होती है कि अरे सैलरी कितनी मिलेगी. सो मेरे मन में तो ये भी क्यूरियोसिटी है कि आप मेरे को सैलरी रेंजेस तो बताओ ऑफ वॉट एवर, लाइक इफ यू कैन टेल वॉट एवर यू आर गेटिंग ओवर देयर, समथिंग समवेयर अ रेंज. एंड यू ऑल्सो हैव माइट बी हैविंग फ्रेंड्स इन इंडिया ऑल्सो, तो क्या डिफरेंस है इन द सैलरी रेंजेस? Okay, so I guess salary ranges are again between US and India तो बहुत massive है, yes, but India बिल्कुल पीछे नहीं है आजकल, and India does provide good salaries सब fields में. अभी क्या हुआ था recently data engineering बहुत popular हुआ था पिछले 1-2 साल में. तो I guess as far as I know data engineering के salaries are like the highest. Then उसके बाद and because data scientist के लिए बहुत ज़्यादा skill level चाहिए होता है, you need a lot of experience. तुम्हें stats आना चाहिए and skills, the number of skills are a lot. So data scientist is somewhere like on par with data engineers and थोड़ा ऊपर ही होगा. With data analyst again as we see it's like you don't have to code a lot. You have to get a lot of business acumen. So data analyst को on a salary range I will place below data engineers and data scientists. You've not given any numbers, Ayan. Yeah. We are looking for the numbers. Okay, numbers. India में I have no idea. I can give यहाँ के numbers. Yeah, please. Okay, good. We'll make a comparison in our mind. Okay, cool. यहाँ का मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी. Okay, okay. So guys, यहाँ पर data analyst का the average package is like between 4 to 8, you can understand. Okay. Then comes the data engineering. So data engineering में also it goes to like 4 to 10 or 11 depending on your skill set. Okay. And उससे ज़्यादा है data scientist as you already mentioned. But yeah, we are still curious to know about the US salary market. Okay, so यहाँ के फिगर्स थोड़े बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट है गाइस, अपने होप्स हाई ऐसे डायरेक्टली मत करना. सो फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट समवेयर अराउंड $75,000 to $90,000 an year. Then for a data, then for a data engineer, somewhere around say 100 to 120, 130K a year. Basically, यहाँ पे it mostly depends on the states, but this is like the average figure. For data scientists, it is somewhere around 100 to 130 only, but it can be more and less, depends on the firm. My God, there's a drastic difference, but then there is a difference in the living standards and expenses also. Like so ऐसे you cannot compare. Yeah, exactly. Right, that's a completely different topic. So बहुत सारा discussion हो गया regarding salaries. Now let's come back to our initial discussion. चलो projects का थोड़ा discussion कर लेते हैं यार. So let's assume 2 roles for now, data analyst and data engineering. And उनके लिए what projects should we make? Let's say कोई second year या third year में है and that person wants to make a good project for his resume. So क्या क्या projects बनाने चाहिए? Okay, so जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड थर्ड ईयर में हैं एंड से फॉर अ डेटा इंजीनियरिंग रोल, नंबर 1 व्हाट दे शुड ट्राई टू डू इज टू मेक सम ETL पाइपलाइन प्रोजेक्ट जहाँ पे एक सोर्स यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल फाइल स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत क्वेरीज लिखो, कोड लिखो एंड उसको ट्रांसफॉर्म करके देखो कि लाइक कुछ उससे आउटपुट आ रहा है कि नहीं, एंड देन उसको प्रेजेंट करो. सेकेंडली फॉर डेटा एनालिस्ट रोल थोड़ा सा क्लीन डेटा लो पहले, थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन नहीं, थोड़ा डर्टी भी होना चाहिए उसमें, और फिर उसको थोड़ा सा क्लीन करो डेटा को. उसके बाद उसको डैशबोर्ड बना सकते हो, कोई BI टूल यूज़ करके, कोई भी यूज़ कर लो, एंड बस थोड़ा सा एक्सप्लेन, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करो कि लाइक हाउ एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद द डेटा, तो दैट शुड बी फाइन. ठीक है. सो जो मुझे समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन करने की एक बार कोशिश करती हूँ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यान. सो आपको डेटा सेट कलेक्ट करना है फ्रॉम Kaggle, ठीक है. उसके बाद वॉट एवर नॉलेज यू हैव फ्रॉम योर एक्सेल, SQL एंड वॉट एवर टूल्स यू हैव लर्नड, उससे जो भी तुम्हारी नॉलेज है, यूटिलाइज दैट नॉलेज टू गेट द आउटपुट विच आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द डेटा. लेट्स से डेटा क्लीन करना है या डेटा से कुछ आउटपुट यू आर एक्सपेक्टिंग इन बिजनेस पर्सपेक्टिव या बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, कुछ भी डेटा सेट हो सकता है. सो यू डू दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट, राइट? ठीक है, क्लियर टू मी. लेट्स जंप टू रिज्यूमे नाउ. अब प्रोजेक्ट तो बन गए हमारे, मतलब हमने स्किल सीख ली एंड प्रोजेक्ट भी बन गया. अब हम अच्छे रिज्यूमे की बात करते हैं. सो व्हाट इज द स्किल दैट हैज टू बी मेंशन इन द डेटा एनालिस्ट रोल, engineer, एंड व्हाट अबाउट द डेटा इंजीनियरिंग? ओके, सो रिज्यूमे बनाने से पहले एंड इवन जॉब सर्च करने से पहले जस्ट डिसाइड कि यार तुम्हें करना क्या है एंड उस हिसाब से टेलर मेड करना है अपना रिज्यूमे.
तो अगर हाँ, तुम लोग ठीक है। मल्टीपल रोल्स ट्राई कर रहे हो तो मल्टीपल रेज्यूमेज भी बना सकते हो, बट से फॉर अ डेटा एक्चुअली बनाना ही चाहिए। या दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड क्योंकि जिस जॉब के लिए यू आर टारगेटिंग वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. Say for example, if you are looking for a data engineer role, उसमें हाँ. you should mention coding skills like Python, SQL. थोड़ा सा अपना example दो, like when you like created a pipeline, अपने project showcase वगैरह करो. And for data analyst role, use BI tools थोड़ा सा where you give insights, थोड़े strategic decisions दिए based on the data. So that you can put on. ठीक है, ये तो क्लियर है. अब जैसे रिज्यूमे बनाने के लिए समटाइम्स वी हैव टू यूज डॉक और टेम्पलेट्स, और व्हाट इज प्रिफर्ड एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक अ गुड रिज्यूमे? ओके, सो शिवांगी, मैंने तो कभी कोई वेबसाइट ऐसे फॉलो नहीं करी. आई यूज टू मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड फिर मैं गूगल पे उस पर चेक करता था कि यार अच्छा बना है कि नहीं. बट फॉर बिगनर्स जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, दे कैन यूज resume.io, enhancecv.com. ये सारी वेबसाइट्स में टेम्पलेट्स ले लो एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा उसमें ऐड करो एंड उसमें काम हो जाएगा. ओके, रिज्यूमे को लेके एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आता है कि आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, अदरवाइज वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ डू वी चेक इट? ओके, सो आजकल क्या होता है, बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं कंपनीज के पास एंड वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं रेज्यूमेज देख के. तो उनने ये सिस्टम लगा दिया ATS, जहाँ पे वो थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन चेक कर पाए रेज्यूमेज का कि भाई बंदा सीरियस है कि नहीं टू अप्लाई फॉर द जॉब. तो उसके लिए इफ यू वांट टू मेक योर रेज्यूमे ATS स्टैंडर्ड, ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन योर रेज्यूमे लाइक क्वाइट स्टैंडर्ड, एज इन कोई लाइंस टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, डेट्स सारे इन ऑर्डर होने चाहिए, देन बुलेट पॉइंट्स एक के नीचे एक होने चाहिए, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एंड थोड़ा सा से फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए. तो आजकल यू कैन जस्ट यूज ChatGPT टू अपने सेंटेंसेस वगैरह को थोड़ा टेलर मेड करने के लिए, कीवर्ड्स वगैरह यूज करने के लिए, एंड यू कैन बोल्ड आउट ऑल द लाइक नंबर्स वगैरह अगर कुछ डाला है, कुछ बहुत अच्छा करा है तो. राइट, सो पहली चीज़ तो सीरियस हो जाओ. इफ़ यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ जॉब और सही में मेहनत कर रहे हो रिज्यूमे बनाने में, तो सीरियसली बनाओ एंड छोटी छोटी गलतियां मत करो कि तुम अपना स्पेलिंग मिस्टेक ही किए दे रहे हो, या तो फिर बुलेट पॉइंट्स प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करे हैं, हाईलाइट नहीं करा है, लिंक्स नहीं दिए हैं. ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं. एंड पता चला, मैं ये भी देखती हूँ कि फ्रेशर्स 2-3 पेज के रिज्यूमे बना देते हैं. मुझे तो समझ में नहीं आता क्या थीसिस लिखी है. रिज्यूमे शुड बी रियली शॉर्ट एंड क्रिस्प. एक पेज में सब कुछ लिखना है तुम्हें. यस एग्जैक्टली, रिज्यूमे का ये तो है, लाइक इट्स अ रूल ऑफ थंब, हमेशा एक पेज का रिज्यूमे बनाओ गाइस. एक से ज़्यादा कभी कोई फ्रूटफुल नहीं होता. हाँ, क्योंकि यू कांट, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्रेशर, एक होता है कि यू आर मेकिंग योर CV, सो CV हैज़ योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, बट एज अ फ्रेशर यू हैव टू मेक योर रिज्यूमे जिसमें क्या ही एक्सपीरियंस तो मेंशन कर दोगे. कुछ भी 2-4 इंटर्नशिप्स करी होंगी और उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, 1-2 प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उसको मेंशन करने के लिए एक पेज सफिशिएंट होता है. सो इंटर्नशिप से याद आया, वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द इंटर्नशिप्स. सो इंटर्नशिप्स के लिए हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए? सो आई गेस इंटर्नशिप्स यहाँ पे इंडिया में भी एंड US में भी 2 टाइप्स की होती हैं. एक समर इंटर्नशिप होती है, एक विंटर इंटर्नशिप होती है. अब आई वुड सजेस्ट कि यार आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, वेट मत करो, थोड़ी बहुत स्किल सीखो एंड स्टार्ट अप्लाइंग. बेस्ट सोर्स टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब्स इज LinkedIn सबसे पहले, बिकॉज वहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से रोल्स एंड अपने हिसाब से कंपनीज. फिर डायरेक्टली LinkedIn पे अप्लाई मत करो, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, चेक करो कि यार वो रोल है कि नहीं. देन व्हाट यू कैन डू इज ईदर अप्लाई और ईदर रीच आउट टू एन एम्प्लॉय फॉर अ रेफरल. रेफरल लोगे तो यार ऑब्वियसली बेटर रहेगा, कोई आपको रिकमेंड कर रहा है. एंड देन इंटर्नशिप्स के लिए रेफरल मिलता है? यस, बहुत जगह मिलता है एंड बहुत जगह नहीं भी मिलता है. तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो इट्स मोर लाइक यार थोड़ी और एफर्ट मारो जस्ट टू नो कि यार कहाँ कैसा है. प्लस इफ यू आर बिल्डिंग अ नेटवर्क एंड अपने कनेक्शंस बना रहे हो, तो वो फुल टाइम में भी आपको हेल्प करेगा. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क एज सून एज यू कैन. मेरा सजेशन ये है कि इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, तो एक लिस्ट बनाओ फॉर द कंपनीज जो जिसमें तुम टारगेट कर रहे हो. पहले सर्च करो, रिसर्च करो कि किस कंपनी में डेटा रोल्स अवेलेबल हैं. देन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज कंपनीज, सर्च फॉर द रोल्स और ओपन प्रोफाइल्स. एंड अगर जॉब के लिए ही सिर्फ रोल्स ओपन है एंड देयर इज नो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तब तो इट डजंट मेक सेंस. बट अगर जिन कंपनीज में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, उसमें देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल गेट अ PPO. सो मेक अ लिस्ट एंड देन कनेक्ट विद पीपल ऑन LinkedIn एंड देन
ask for referral. That way it's the easiest path. Yes. So LinkedIn is so very known for people, but apart from LinkedIn, what other platforms we can use to apply for jobs or internships per se? ओके सो आई गेस पर्सनली लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार जॉब ढूंढे कहाँ पे. तो अगर लिंक्डइन नहीं हाँ. तो यू कैन ट्राई से naukri.com, सिंपली हायर्ड वहाँ पे है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट दे लाइक और वेबसाइट्स होंगी. एंजल लिस्ट है आई गेस वहाँ पे टू लुक फॉर स्टार्टअप जॉब्स. एंड ये सारी वेबसाइट यूज़ करो. अगेन जैसे शिवांगी ने बताया कि जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट पैटर्न, मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं जिनमें डेटा रोल्स हैं, देन रीच आउट टू पीपल एंड थोड़ा सा उनके जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अपना रिज्यूमे भी थोड़ा सा टेलर मेड ऐसे एडिट कर सकते हो. एग्जैक्टली, इजी फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे सारी मेहनत प्रिपरेशन में तो कर देते हैं, Yes. लेकिन वो एक रिज्यूमे छाप देते हैं हर जगह. दैट इज वन थिंग, क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है. Yes. बिकॉज हर जॉब डिस्क्रिप्शन में थोड़ी ना थोड़ी डिफरेंसेस तो होंगे ही, एंड तुम्हें वो डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को टेलर मेड करना पड़ेगा. Yes. सो इसमें आलस मत दिखाओ, बिकॉज अगर तुमने मेहनत करके प्रिपरेशन कर भी लिया है, अगर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, सो यू आर नॉट गोना गेट टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू. exactly. So do this. Okay, so we discussed a lot about the resume part, but I want to know कि someone who has no idea and who has just started, तो हर एक step पर like right from learning skills to building resume कितना time exactly लगेगा to get prepared properly and to get job ready? ओके सो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को हार्ड वर्क से ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए. ज़रूरी नहीं कि यार आपको सारी स्किल्स आनी चाहिए फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो फिर जॉब ढूंढना शुरू कर रहे हो. ये सब चीज़ें पैरेलली चलती हैं. कोई भी स्किल आप पढ़ना चाह रहे हो, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, कुछ भी, उसको पढ़ना सीखो, थोड़ा बहुत पढ़ो उसके बारे में, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना सीखो, अप्लाई करना सीखो. एंड मीनवाइल जब तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो साइड बाय साइड जॉब्स ढूंढो जो प्रोफाइल्स में उनकी नीड है एंड उनमें अप्लाई करना शुरू कर दो. बिकॉज जॉब प्रोसेस जो है टाइम लेता है. कभी कभी रिक्रूटर्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा महीना भर लगा देते हैं टू शॉर्ट लिस्ट एंड देन प्रोसेस शुरू होता है. उसमें भी लाइक 1 हफ्ते में एक इंटरव्यूज रखते हैं. तो समझ लो कि लाइक इफ़ यू हैव लाइक 2 months पूरा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि यार तुम्हें 2 महीने के लिए पूरा ही से पढ़ाई करनी है. तो स्टार्ट जैसे ही तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, जॉब भी साइड बाय साइड अप्लाई करना शुरू कर दो. इट्स लाइक जस्ट मेक योर ओन टाइमलाइन. कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यार 1 2 3 महीना, बट जस्ट स्टार्ट. So Ayan, there is a lot which we can learn from you. There is a lot which you can share with us, and I'm really interested to have more discussions with you, but not in today's podcast. आज का मेरा एजेंडा ये था कि हम डेटा के अराउंड डिस्कशन करेंगे, that if someone wants to come into this field, उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए. हर एक चीज़ मैंने कोशिश करी कवर करने की, but I'm also interested to know about your MS part, that how did you decide to do MS? How did you decide to go abroad? कितना खर्चा आया? How did you decide the colleges and everything? तो इसके लिए we'll make separate podcast. So guys, if you are interested to know about it, just do comment me in the comment section so that मुझे भी एक fair idea मिल जाए that you are interested or not, and then further I can invite him again on my channel and we can have a discussion again. And for today, thank you very much Ayan for coming to my channel. इतना detailed discussion करने के लिए, and it was fun interacting with you. I hope you also enjoyed with us. Yes, thanks a lot Shivangi for inviting me, and all the best guys for your preparations. Thank you so much Ayan. I hope guys you liked the podcast. तो अगर podcast अच्छी लगी है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family, and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified whenever I post my new video. And हाँ, ऐसी और road maps और videos के लिए don't forget to check out over here. Bye bye.